It's time for match number 69 between Mumbai Indians and Delhi Capitals. Mumbai Indians की किस्मत इस दूसरी तरफ दिल्ली की किस्मत आरसीबी यानी कि एक दो नहीं तीन can take responsibility. I think Delhi's woes start if David Warner gets out early. Nobody else is batted through the overs. If he stays at one end, then they sort of know what to do. Everything falls in place. The moment he gets out, I don't think they have too many players who are cut from the same cloth as a David Warner, who can also hold the innings and be the aggressor, both at the same time. And he can change roles. He can start off normally. So we talk about him and Shikhar, 20 balls, 24. Then the next 15 balls are 25 and the last 15 balls are 35. So हो गया आपका 50 बॉल में 75-80. So ये जो फॉर्मूला होता है ये सबके पास नहीं है. Rishabh will go hammer and tongs. That's the way he plays. He's an outstanding cricketer. But they also need sometimes when it's a long game, when it's 14-15 over बाकी है. Suppose they are 47 for 3 in 5 overs or 65 for 3 after 6 to 7 overs. Then वो 13 over and Warner is back. कौन लेके जाएगा 18 तक? Who will take it deep? That's the point. And the news from Wankhede is Mumbai Indians have won the toss and opted to field first. Debashish good toss to win और match do or die now or never कह सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स ने, लेकिन टॉस जीता है मुंबई इंडियंस ने. जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए दे विल बी बबलिंग विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि पिछले मैच में जो उन्होंने जीत हासिल किया तो चेजिंग स्पेशली विद द लाइक्स ऑफ द टीम डेविड कमिंग इनटू फॉर्म, so they would feel comfortable chasing a total अगर 170-180 का आसपास में होगा तो they would feel confident. But then अगर जैसे कि अगर दिल्ली कैपिटल्स, we all know what David Warner can bring to the table. तो अगर डेविड वार्नर चलने लग गया और if it scores, if it stays at the wicket in the middle for around 10-12 overs, then it will be match on. So and Delhi Capitals might post a huge total, which might then become an advantage for Delhi Capitals. Reema ji. जयदीप, ऋषभ पंत ने बोला है टॉस के बाद कि वो भी पहले बॉलिंग करना चाहते थे, यानी वानखेड़े की मीटिंग में विकेट में आप पहले बॉलिंग प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पहले बैटिंग है दिल्ली कैपिटल्स की. वार्नर जैसे कि आपने कहा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और इनका जो रिकॉर्ड है मुंबई इंडियंस के वो भी अच्छा है. सामने आज उम्मीद करेंगे पृथ्वी शॉ, और पृथ्वी शॉ आ चुके हैं इन प्लेस ऑफ ललित. ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, बूस्ट है. लेकिन क्या जैसे हेटमायर आए थे वापस रिदम में थे, जब उन्होंने ब्रेक लिया था वो रिदम ब्रेक हुई, तो आज क्या वो रिदम में नजर आएंगे? चांसेस क्या है, क्योंकि आप एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं, टाइफाइड हुआ था आपको, आप उतना हार्ड प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए होंगे, लेकिन ये डू और डाई मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स के लिए. मिचेल मार्च अच्छी फॉर्म में है, लेकिन पृथ्वी शॉ एक प्लस दिल्ली कैपिटल्स के लिए. Yeah, I think he's a rhythm player and it won't be easy for him. Not only has he not played, he's not practiced, he's been lying in a hospital bed, so it's been tough times for him. And typhoid is a serious one. It knocks you out physically, mentally. You just don't feel the strength. And he's such a touch player. If he was a bowler, I would have still said, okay, maybe, you never know. You bowl a couple of overs and get into the groove. But because it's a one-ball game for the batters, he can do anything with the cricket bat in hand. He's supremely talented. But it will be difficult for him, and I hope he hits off, because if he hits off, Warner can play second fiddle and everything falls into place. So that's the good thing about him hitting off. He will play in such a way where everybody else can play at 7.5, 8 runs and over and still get to 170 or 180. That's what he does. He'll give you a 20 ball 45 and go, and then everybody else doesn't have to take those extra chances now. Now they can play their 7.5, 8 a game. They can milk it around. And then again, 19-20, 18-19-20, you can go hammer and tongs and try and top it up at the back end. So he's very vital for the team. एब्सोल्युटली. और दिल्ली कैपिटल्स के सामने देबशीष आज मुंबई नहीं, मुंबई इंडियंस के फैंस भी होंगे, वानखेड़े में वो फैंस होंगे, आरसीबी के फैंस होंगे, आरसीबी की टीम होगी, तो ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के आसान नहीं रहने वाला. क्या माइंडसेट होगी, क्या अप्रोच लेके उतरना चाहिए, क्योंकि क्या प्रेशर होगा या अनदर मैच की तरह वो खेलेंगे? देखिए, चाहे आप माने या ना माने, प्रेशर तो होगा ही, क्योंकि इट्स अ डू और डाई मैच फॉर दिल्ली कैपिटल. मगर ऑब्वियसली दे आर ऑल एक्सपीरियंस स्टार्स, लाइक्स ऑफ डेविड वार्नर, ऋषभ पंत, काफी मैच खेले, और मिचेल मार्श, ही नोज हाउ टू
हैंडल प्रेशर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में वो पारी खेला, तो वी नो व्हाट मिचेल मार्श ब्रिंग्स टू द टेबल, खास करके इज अ इनफॉर्म बैटर एज वेल, 250 किया है एक, तो he will have to play a very very crucial role. और I'm happy that they have stuck with सरफराज खान कि उसको टीम में रखा है, जगह मिला है हुँ, उसको टीम में। तो पिछले मैच में हमने देखा था किस तरह से आक्रमणात्मक बल्लेबाजी किया उन्होंने एट द स्टार्ट। तो बट देन वन वुड डाउट कि आज पृथ्वी शॉ शायद ओपन करेगा। तो दिल्ली कैपिटल्स का अप्रोच यही होना चाहिए कि टू प्ले आउट देयर फ्रीली, क्योंकि देखिए कुछ ज्यादा कुछ सोचना मत, क्योंकि उनको पहला काम ये तय करना है कि दे नीड, इफ दे विन दे आर थ्रू टू द प्लेऑफ्स। इट्स एज सिंपल हुँ। एज दैट। बोलना आसान है मगर कर दिखाना बहुत टफ है। बट कितनी अच्छी बात है ना, कोई नेट रन रेट नहीं, कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए आज, कोई मैथ्स हाँ, नहीं चाहिए। आज आप जीते और आगे जाइए, अगर नहीं जीते तो घर जाइए। लेकिन एक बड़ी न्यूज़ टॉस के बाद जॉयदीप, बारिश, इट या स्टार्टेड रेनिंग हर्ड किसको फ़ेवर हर्ड करेगी? मैं व्यूअर्स को मैं जानना चाहती हूँ, व्यूअर्स जानना चाहते हैं, दिल्ली कैपिटल्स को फ़ेवर करेगी या आरसीबी का पलड़ा भारी रहेगा अगर बारिश होती है तो? अगर बारिश के कारण मैच नहीं होता? then to you share points, right? And then then आरसीबी गोस थ्रू। RCB goes through. Yeah, पॉइंट्स टेबल पे ऊपर है आरसीबी, 16 है, आरसीबी 16 16 है, और दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स कैपिटल्स के पास 14। 14 है। 14 है। तो हुँ। अगर शेयर हो गया तो बस हो गया खत्म। सो आरसीबी बैंगलोर में तो खुशियाँ स्टार्ट हो गई होगी? Bangalore apparently it's raining a lot. I had some friends who have went to the NC and they said it was 18-20 degrees in Bangalore, and it's हुँ, very 40 degrees in Kolkata. Anyway, it's about 18 degrees in Bangalore. Everybody's got jacket on, हुँ। and लेकिन लेकिन एडवांटेज ज़रूर आरसीबी को होगी, लेकिन एडवांटेज जॉयदीप मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह को होगी, सैम्स को होगी, पेसर्स को होगी। पहले बॉलिंग कर hmm, रहे हैं, डार्क क्लाउड्स हैं, थोड़ी-सी बारिश भी हुई है और अगर थोड़ा आप पहले moisture बॉलिंग है, करते हैं तो heavy डेफिनिटली heavy heavy, हाँ, थोड़ा heavy एडवांटेज condition. मुंबई, ये मानते हैं आप? Absolutely. And I also feel right एब्सोल्युटली। now that they said that it's rain, but it doesn't look like one of those sustained ones. It's also looking thin one, not with the huge cloud cover and all that. It's come out of nowhere, so this could be हुँ। short lived. And also, they have the option of extending the game by that many minutes without reducing the overs. So that will also come into play. इसलिए मैंने कहा कि अगर बारिश हुई है, टॉस जीते हैं, पहले बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो एडवांटेज मुंबई की तरफ जाता है, तो सारे आज ना मंदिर में बैठे होंगे आरसीबी के फैन्स। दिल्ली कैपिटल्स पे रहते हैं ऋषभ पंत, देबाशीष, हम जानते हैं कितने डिस्ट्रक्टिव वो प्लेयर है, लेकिन इस बार आईपीएल उनका थोड़ा-सा फीका रहा है। कैप्टेनशिप अच्छी रही है, जैसे कि संजू सैमसन की रही है, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में देखो And काफ़ी last year, नीचे आ रहे थे एंड लास्ट and ईयर ऑल्सो। last year. अ, हमने देखा कि पिछले 2-3 मुकाबले में काफ़ी नीचे आ रहे हैं। वो ऐसे बैटर हैं, देखिए नंबर 3 पे या 4 पे है। नंबर 3 पे आपके मिचेल मार्श अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनको आना बनता है। पिछले मैच में ललित यादव आए थे, आज वो खेल नहीं रहे। तो क्या हम नंबर 4 पे ऋषभ पंत को देखेंगे? विल इट बी अ राइट मूव? 100% it will be a right move to for ऋषभ to come in at number 4, क्योंकि उसको जितना बॉल मिलेगा उतना फायदा है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, एंड ही इज अ बिग मैच प्लेयर। तो आज बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ डू और डाई मैच। who better than Rishabh Pant to handle that pressure, go out in the middle and just give his team a blazing innings. तो that will be it. And और वो काफी रिलैक्स भी दिख रहा है, ऐसे नहीं कि वो प्रेशर में है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऋषभ पंत ऐसे ही खेलता है। हुँ। चाहे वो रन बनाए या चाहे वो जल्दी आउट हो जाए, he will come out there and be positive. He is a very positive person, और यही उम्मीद करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की goes out there and leads from the front. जयदीप, क्या आप अगर डीसी के डगआउट में होंगे एज़ अ कोच, तो आप क्या सजेशन देंगे ऋषभ पंत को? क्या आप उनको फ्री लाइसेंस देंगे कि जाइए आप जो करते हैं आप वही करिए, क्योंकि वहीं पे आपका सक्सेस परसेंटेज भी आया था, आज खराब टाइम आ रहा है, आप उसको बैक करेंगे? या फिर ऋषभ पंत कहेंगे भाई आप अपने शॉट्स के लिए, बट वो हीरो वाली शॉट्स है ना, वो अपने पॉकेट में रख के जाइए, वो मत निकालिएगा? That'll be difficult for him to do it overnight. This will happen over a period of time, even if it has to happen. So you just go out and say that maybe today is your day. If you bat for 10 overs, it's game over for the opponents. So you would want to do that because, this, हम जो बोल रहे थे, हम जो discuss कर रहे थे पहले दिन भी, yesterday we were talking about it. This transition does take time. It doesn't happen overnight, where he will have to give up some of his flamboyance and with that the strike rate to get the runs and the average and the utility in the team up. Right now, he's a player who can come and just blast you and win you a game.
But to be a daddy player, to be one of those guys who day in and day out, year in, year out, 500 runs a season. Josh Butler used to be cut from the same cloth. He has never had a 500-run season. This is the first time he's had one. So it's taken him, what, 5, 6, but look at the Dhawans, look at the Warners. They do it every year. So if you want to be consistent, then you give up a little bit of your strike rate, what I was explaining to you yesterday, to be more consistent, to get more runs, to get your averages up. So it's like I said, I use the same one. So your strike rate 170, your runs are here, your average is here. Okay, your strike rate is down to 150, you're slightly up. Your strike rate is 140, you're averaging 35, 37, and you've got 500 runs for the season. So that's what Warner and Shikhar have done. That's something I think if for some reason today doesn't go well with Rishabh and this year doesn't go well, he will think about it in the off season. He'll say, how can I get better? He's a sharp kid. He'll learn from the seniors. लेकिन इसी बीच गुड न्यूज़ फॉर दिल्ली कैपिटल्स फैंस कि बारिश रुक गई है, यानी कि आप पूरा कोटा ऑफ ओवर भी खेलेंगे, इतना डैमेज भी नहीं होगा। जाते-जाते दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक और क्वेश्चन, इसके बाद मुंबई इंडियंस पे आएँगे। देवाशीष, दिल्ली कैपिटल्स पहले बैटिंग कर रहा है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन नीचे पावेल के भी अच्छे हैं, अक्षर पटेल अपना रोल बखूबी निकाल रहे हैं, शार्दुल ठाकुर भी अच्छी बैटिंग करते हैं। ये पर्क्स होते हैं जब आपके पास ऑलराउंडर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन बॉलिंग यूनिट पे आए, ठीक-ठाक कर रही है। चाहे पहले बॉलिंग करें, चाहे बाद में बॉलिंग करें, पिछले 2 मैचेस का अगर मैं स्टैट्स लूँ, डिफेंड भी किया है, पहले बॉलिंग में आपने बड़े टोटल से रोका भी है। नोकिया अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, शार्दुल ठाकुर विकेट्स ले रहे हैं, कुलदीप यादव विकेट ले रहे हैं, अक्षर पटेल विकेट ले रहे हैं, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा कोई कंसर्न नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जितने भी सारे बॉलर्स हैं दिल्ली कैपिटल्स के, दे लुक्ड अ वेरी डिसेंट बॉलिंग अटैक, क्योंकि इनके नेटवर्क शायद उनका नेटवर्क स्टक हो गया है। जयदीप, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? Sorry, what was the question again, please? दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग में ज़्यादा कंसर्न नज़र नहीं आ रहा। शार्दुल ठाकुर विकेट ले रहे हैं, कुलदीप यादव विकेट ले रहे हैं, नोकिया अच्छी वाली फॉर्म में वापस आ चुके हैं और अक्सर अक्षर पटेल कर रहे हैं, तो बॉलिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। नहीं, बॉलिंग में प्रॉब्लम है नहीं, है प्रॉब्लम बैटिंग में। पर जब आप बॉलिंग यूनिट को पता है ना बैटिंग में प्रॉब्लम है, तो वो ज्यादा लोड ले लेते हैं। एंड वी स्पोकन अबाउट दिस बिफोर। सो बोथ हैव टू बी इक्वली बैलेंस्ड, बिकॉज़ इफ वन इज stronger than the other, then the other feels the heat of the other one not being strong. I think if Delhi gets runs on the board, that's why it's absolutely imperative for Shikhar, for David Warner to be around, because he's the sort of guy who can control the innings, even if it takes time, even if he's batting at 120 strike rate for the first 10 overs, no problem, because he will hold one end up, he will look after one end, and from the other end, the others can go and play their shots. Prithvi sticks on for a while. David Warner bats for 12, 13 overs, job done for because the rest fall in place. Problem is, if Prithvi doesn't take off and David Warner gets out, then questions. मुंबई इंडियंस पे चलते हैं। आज 2 बदलाव हैं। एक हमने देखा डीसी में है, पार्थिव आए हैं। मुंबई इंडियंस में ब्रेविस वापस आए हैं स्टब्स की जगह और एक चेंज हुआ, ऋतिक शौकीन आया, माफ कीजिए, ऋतिक के नाम से रोशन याद आता है। ऋतिक शौकीन वापस आए हैं संजय की जगह पे। 2 चेंज से उतरे हैं, बैटिंग को और स्ट्रॉन्ग किया है, टॉस जीती है, पहले जो आप करना चाहते हैं वो आपको मिला है। वानखेड़े में मैच आप खेल रहे हैं, एडवांटेज मुझे यहाँ से नज़र आ रही है मुंबई इंडियंस की तरफ। और खेलना किस लिए? प्राइड के लिए खेलना है, क्राउड के लिए खेलना है आज तो, और अब नेक्स्ट सीज़न की तैयारी पे उतर आए हैं। लेकिन एक नाम मिसिंग है। हम पहले इसमें बात करेंगे टीम कैसी है आज के प्लेइंग 11, और अर्जुन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी, आपने बाकी सब खिलाड़ियों को मौका दिया है, उनका नाम नहीं आया। मैंने सुना है, मैं रवि शास्त्री का स्टेटमेंट सुना था कि उनके पास स्विंग है, टॉल फास्ट बॉलर हैं, स्टार्टिंग में स्विंग भी कराते हैं, हाइट की वजह से उनको बाउंस भी मिलता है, लेकिन जगह उनको अभी तक मिल नहीं पाई। शायद और एक्सपीरियंस की ज़रूरत, और ग्रूम कर रहे हैं। Gee, I think he needs to play more senior cricket. That's about it. I think he hasn't played a lot of senior cricket. Great point. Has done really well in junior cricket, and just goes to show that they are trying to win this game. They're not just trying to give everybody a chance, unless people really deserve to be there. All the changes that are there are tactical. It's evident the way they've come through. But what's important for me is, what Mumbai, what Jayawardene would also tell the boys is that, listen, guys, this is the last time we're playing this year. Let's leave a mark. Let's get 220 for 3. Let's leave a mark where people will carry this for the rest of the year till the next IPL and say, remember how we finished? That's how we'll start. It'll be a ray of hope for next year. So there's a lot to play for Mumbai. Your pride, your prestige, your future, and for people of Mumbai and the Mumbai supporters to be happy for the next 10 months.
give them hope. एंड फिनिश ऑफ द टूर्नामेंट ऑन अ हाई, यही उम्मीद करेंगे Absolutely. मुंबई इंडियंस के फैंस भी। अब वानखेड़े में आज शोर होने वाला है रोहित शर्मा के नाम से। देवाशीष वापस आ चुके हैं। देवाशीष, मुंबई इंडियंस की बात करें, रोहित शर्मा आज इस आईपीएल 2022 का आखिरी मैच है। अभी तक एक भी 50 आया नहीं, लेकिन आज वो दिन है क्योंकि एक राइवलरी चलती है बिटवीन आरसीबी फैंस एंड मुंबई इंडियंस फैंस। ये टीम दोनों आपस में एक अलग ही लेवल पे खेलती है, तो कहीं ना कहीं खुंदक भी होगी। और वो हम बात करते हैं कि नहीं, एक प्राइड के लिए खेल रहे हैं, चाहेंगे कि लंबा बड़ा आज स्कोर आज करके फॉर्म के साथ खत्म करें। आज आज कोई राइवलरी नहीं है, आज सब दुआ मांग रहे हैं। आरसीबी फैंस, जितने भी सारे आरसीबी फैंस हैं, सब दुआ मांग रहे हैं। और शायद आज ही का लेकिन दिन रोहित मुंबई शर्मा का 50। मुंबई ये सोच रही होगी कि आज हम जीतेंगे, अपने लिए जीतेंगे ताकि हम तो जीते। एकदम हम तो डूबेंगे सनम, एकदम तुमको एकदम। लेके डूबेंगे, आज वो वाला हाल होने वाला नहीं, है। ऑलरेडी तो उन्होंने डुबाया ना चेन्नई सुपर किंग्स को ऑलरेडी। तो आज बिल्कुल। इनका भी गेम खत्म कर देंगे। लेकिन तो आरसीबी ऐसी टीम है बट जो हाँ, डिजर्व बट करती है। डेफिनेटली वी वुड लव टू सी रोहित शर्मा बैक टू फॉर्म, क्योंकि वो पूरा सीजन एक भी 50 ना बनाया, इसे हम सोच ही नहीं सकते। क्योंकि इवन और ऐसा आज तक हुआ नहीं है, एटलीस्ट एक 50 हुआ जरूर नहीं, बनता है। हुआ नहीं है। और कुछ ज्यादा ज्यादा कुछ रन बचा नहीं है टू स्कोर हम्म 5000 रन इन आईपीएल। तो हम्म आईपीएल के हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है वो। तो ही इज हम्म। अ गन प्लेयर, ही इज अ बिग प्लेयर। तो ऐसे ऐसे सीजन अक्सर नहीं होता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आज रोहित शर्मा का बल्ले से एक काफी बड़ा इनिंग्स आए। और अगर वो आता है तो दिल्ली कैपिटल्स तो किया। बिल्कुल, रोहित शर्मा के साथ-साथ उनके सामने वाले जो बैटर है ना, ईशान किशन, मिलियन डॉलर बेबी हैं इस आईपीएल में, लेकिन फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी शुरुआत में। लेकिन जो 80 प्लस का स्कोर था वो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट ही आया था। जयदीप, उम्मीद करेंगे जैसे शुरुआत की थी, जैसे आगाज किया था, अंत भी वैसे ही करें। Absolutely, and also there's an Indian team that's going to be picked in and around the time. Rishabh Pant might be rested. So these are questions. Who's going to be the keeper? I mean, I was discussing with Arun Lalkar and wondering if Rishabh Pant is rested, which keeper has actually done well enough to be in the Indian team? Rishabh has, Ishan has had a quiet year. Sanju has had hits and misses. Can't think of anybody except Dinesh Karthik, except from the keepers, Indian keepers, who've really put their hand up and said, I'm ready. Everybody else has struggled. देवाशीष, मुंबई पहले बॉलिंग कर रही है, बुमराह तो बहुत खुश होंगे, लेकिन बुमराह और सैम की जोड़ी रही है ना, उन्होंने एक फॉर्म पकड़ी है ऑफ लेट। स्टार्टिंग इतना अच्छा नहीं था, सैम तो काफी महंगे भी साबित हुए, ड्रॉप भी हुए, लेकिन जब से कमबैक किया ना, वो इम्पैक्टफुल प्लेयर नजर आए, स्पेशली न्यू बॉल से। जी बिल्कुल। और खास करके कि उनका जो पेयरिंग रहा बुमराह के साथ, तो दैट हैज बीन रियली अ गुड वन। मगर इट डिडंट रिफ्लेक्ट द रिजल्ट कि द आउटकम, क्योंकि मैचेस जीत नहीं रहा है। क्योंकि अगर अगर आप देखें कि बुमराह, द टीम्स विलिंग टू प्ले हिम, उनका 4 ओवर खेल दे रहा है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि बुमराह यूज्ड टू गेट रेगुलर विकेट्स, तो दैट वाज नॉट द केस दिस सीजन। क्योंकि जो बुमराह का जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड दैट ही मेंटेन्स, वो शायद देखने को नहीं मिला, बिकॉज टीम्स आर विलिंग टू प्ले हिम आउट द 4 ओवर्स। तो दैट विल बी अगेन वेरी क्रूशियल। और खास करके पंत के साथ जो बुमराह का टसल है, दैट इज वेरी हम्म इंटरेस्टिंग। क्योंकि 6 दफा उन्होंने पंत को आउट किया। तो वो एक बिल्कुल। होता है ना, एक हैव अ हायर एंड। तो वही है पंत के साथ जो उनका जो शायद, इफ बुमराह इज केप्ट फॉर द डेथ ओवर्स, आई वोंट बी सरप्राइज। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कितना अच्छे बॉलर है वो डेथ में। तो शायद दिल्ली कैपिटल्स का बहुत सारे हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, जैसे रॉबमन पावल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, वो शायद लोअर मिडिल ऑर्डर में आएंगे। तो बुमराह का एट द बैक एंड अगर कुछ 1-2 ओवर अगर बचा के रखे, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। एक पॉइंट में वापस दिल्ली कैपिटल्स पे जाऊंगी, देवाशीष के आंसर से ही एक क्वेश्चन लूंगी। जयदीप, रेस्ट के गेम हमने देखा था कि डेविड वार्नर ने बहुत स्मार्टली न्यू बॉल को साइन ऑफ किया था, स्पेशली बुमराह का वो वेल लेफ्ट करते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने पेस पकड़ी, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बुमराह के स्पेल को, स्पेशली ओवरकास्ट कंडीशंस को, अभी भी मैंने सुना है कि स्लाइट शावर हो रहे हैं, पार आ रहे हैं, वही आप प्लानिंग अपना सकते हैं। वो रणनीति अच्छी रहेगी कि आप थोड़ा देख लीजिए कितना मूवमेंट है, कितना बाउंस है, उसके बाद आप अपनी इनिंग्स बिल्ड कीजिए, डेविड वार्नर स्पेशली। Yeah. He will have a plan for every bowler. He'll have a plan for every bowler. He knows Bumrah. He's played against him a lot. He'll know Sam. So he'll know every bowler. And he's the sort of guy, आपको पता है कि इनका planning और preparation is 100%.
उसमें आउट हो गया तो नो हुँ, प्रॉब्लम, बैट्समैन तो बॉलर से आउट होता है। तो लेकिन मैं हुँ, प्लान में था, मैं मेरे एग्जीक्यूशन में था। मैं प्लान राइट हुआ, एग्जीक्यूशन गलत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। Plan that is what separates these Dada players, because they know they have a plan in place for everybody, and वो plan होता है अपने strength और हुँ, weakness के मुताबिक से. You can't, I mean, two players हुँ, cannot have the same plan because their strengths and weaknesses are different. So that is the reason why I think when हुँ, David Warner comes in, he will, and Prithvi is different. Prithvi will go, even if it's the best ball, he'll still try it. He is trying to play a brand of cricket which no other Indian cricketer plays. No other. हुँ, And I think that is what he's telling the Indian selectors. Listen, what I do, nobody else does. So if I, हुँ, in 10 games, if I come off in 4 5 games, you don't need any help from anybody else. Okay, so एब्सोल्युटली that's what he's अ, trying to do. हुँ। सो बुमराह और सैम्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगे ओपनिंग स्पेल पे क्योंकि कंडीशंस उनके फेवर में है, टॉस उन्होंने जीता है। लेकिन मुंबई इंडियंस में एक और 19 ईयर्स का एक खिलाड़ी है तिलक वर्मा जिन्होंने अपना नाम बनाया है। देवाशीष ये फर्स्ट सीजन खेल रहे हैं। इतनी मैच्योरिटी से जल्दी विकेट गिर जाती है तो ये पारी को सँभालते हैं। अगर लंबी पार्टनरशिप होती है तो नीचे आके ये अटैकिंग शॉट्स खेलते हैं। ये मैच्योरिटी नज़र आई है और रोहित शर्मा ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि ये ऑल फॉर्मेट्स के इंडिया किसी पे भी रह फॉर्मेट में सकते हैं हाँ आने वाले टाइम पे। रह सकता है। ऑल फॉर्मेट यानी जी कि बिल्कुल। टेस्ट मैच में अब आप इनको देख रहे हैं, टी20 में भी देख रहे हैं, ओडीआई में भी देखिए बड़ा स्टेटमेंट है स्पेशली अगर वो रोहित शर्मा से आता है तो। एग्जैक्टली 376 रन्स है एग्जैक्टली। उनके इसी सीज़न में, पहले सीज़न में। राइट। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स क्योंकि जो कॉन्फिडेंस उनको मिला है फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट खास करके कैप्टन से, ये एक हुँ, बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी यंगस्टर के लिए कि कैप्टन का भरोसा। तो वही हुआ तिलक वर्मा के बारे में हम अगर कहना चाहते हैं तो, एंड ही हैज रिपेड द फेथ शोड ऑन हिम बाय द कैप्टन एंड द टीम मुंबई इंडियंस हुँ, टीम मैनेजमेंट पूरा उभर के आया क्योंकि पहले मैच से हमने अगर आप देखें कि पहले मैच में ही शोड साइंस की कितना he had the strokes, he can play innovative shots, temperament भी अच्छा है, उनका स्किल भी अच्छा है, तो आई थिंक ही इज द फाइंड ऑफ मुंबई इंडियंस नो डाउट दिस सीजन। और एक चीज आज देखने को मिलेगा कि डेवाल ब्राविस को भी मुंबई इंडियंस ने आज हुँ, रखा है। तो ये जो इतने सारे यंगस्टर्स है तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव क्योंकि देखिए अगले सीजन तो यही खेलने वाला है फिर से, तो शायद ये उनके लिए मौका भी है to make it a point, खास करके डिवाल ब्रेविस। हुँ, हुँ, See, Rimaji, with एब्सोल्युटली। Tilak Verma, I also feel that the lack of form of Rohit Sharma, Ishan Kishan, Surya's injury has helped him blossom more. He's हुँ, also हुँ, had a lot more responsibility. He's played with a lot more peace in the sense that he's had a lot more balls to play with, which is हुँ, always easy for a 19-year-old. If he हुँ, was, हुँ, if Rohit Sharma had got 400 runs and Ishan Kishan had got 400 runs, it wouldn't have been possible for him to get 376 runs because he wouldn't have got that many balls. हुँ, And also he's sometimes taken his time and played. He's looked very good. But also it's the lack of form of these two players, Surya's injury, everything around that has helped him become. And he really looks a हुँ, good player, really good player. I'm not surprised. Anybody who's playing for under 19 in India is the हुँ। best in the country. So anybody who's playing for under 19 in India is as good as it gets. और अच्छी बात है ना अंडर 19 से जब आप सीनियर क्रिकेट में ट्रांसफर करते हो, वहाँ पे आप परफ़ॉर्म करते हो यानी कि आपके पास वो काबिलियत है, वो टैलेंट है कि आप हाईएस्ट लेवल पे भी परफ़ॉर्म कर सकते हैं और आईपीएल वो मंच है जहाँ पे अगर आप सरपंच बनते हैं तो इंडिया टीम के लिए नोटिस भी किए जा सकते हैं। सो क्या दिल्ली कैपिटल्स जीत के पहुँचेगी प्लेऑफ में या फिर मुंबई जीत के आरसीबी को पहुँचाएगी प्लेऑफ पे? देखते हैं क्या होता है इस मैच में मिलेंगे पोस्ट मैच में तब तक एन्जॉय कीजिए क्योंकि ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वानखेड़े में आज मुंबई इंडियंस के फैन्स, आरसीबी के फैन्स, दिल्ली कैपिटल्स के फैन तीनों के फैन्स मौजूद होंगे लेकिन किसका पलड़ा होगा भारी तो वक़्त बताएगा। वन वर्ड आंसर फटाफट से जयदीप जाते-जाते दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस? Mumbai. मुंबई। मुंबई! वॉव! देवाशीष? दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल 2:1 है आज मैं भी दिल्ली कैपिटल्स से जाऊँगी। चलिए मिलते हैं पोस्ट शो में टिल देन टेक केयर एन्जॉय द मैच एंड सी यू आफ्टर द मैच। थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक यू।